قول اور نفس۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ قول کی حد تک نفس راضی رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے، لیکن جب عمل کی صورت میں جانا پڑے تو پھر گھبراتا ہے اور خدمت کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتا۔ یہ ایسی بات تھی جو ہم کو سننی پڑی پہلی مرتبہ ڈیرے پر جا کر، تو اس کا مفہوم کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے لیے نفس کا تصور ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے، دوسرے یہ کہ قول کیا چیز ہے، تیسرے یہ کہ خدمت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ ہم نے بابا جی سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں افسانے لکھتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی کہانیاں، میں وہ لکھتا ہوں۔ کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی، لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے آپ نے کتنی کہانیاں لکھی ہیں اب تک؟ میں نے کہا کوئی 100 کہانیاں لکھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کہنے لگے 100 کہانیاں تو بہت ہوتی ہیں، اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے لکھی۔ مجھے یہ بتائیں اس میں حال پر کتنی کہانیاں لکھی؟ یہ میرے لیے ایک نیا لفظ تھا، جیسے آپ کے لیے بھی نیا ہے کہ حال پر کا کیا مطلب؟ میں نے وہاں ان کے سیکرٹری صاحب تھے، انہوں نے کہا بابا جی یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے اوپر حال کی صورت میں گزری ہوئی کہانی جو آپ نے لکھی ہے، یعنی وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہو، آپ پر گزری ہو، آپ کا حال رہا ہو، آپ کی کیفیت رہی ہو۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا سر جس بات کا تعلق میرے حال سے ہے، میرے مشاہدے سے نہیں، میرے مطالعے سے نہیں، بلکہ میرے اندر کی ذات سے ہے، وہ تو ان 100 میں سے شاید 3 بنتی ہیں۔ 3 یوں کہ ایک دفعہ مجھے ایف اے میں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، تو وہ بیچاری فوت ہو گئی تھی۔ وہ کہانی میں نے بڑے دردناک انداز میں لکھی تھی جی، وہ تو میرا ایک حصہ تھا۔ اس طرح سے 2 اور کیفیات میں سے گزرا ہوں۔ تو کہنے لگے باقی 97 آپ نے کیسے لکھی؟ میں نے کہا پڑھ پڑھا کے، اخبار میں کچھ چھپا کے، ملتان میں یہ ہو گیا، ساہیوال میں یہ کیفیت گزری، پنو عاقل کے لوگوں کے اوپر یہ ہوا، تو اس کی کہانی بنا ڈالی۔ کہنے لگے نہیں، یہ تو نفس کو دھوکہ دینے والی بات ہے اور قول کو ایسے ہی پھیلانے والی بات ہے۔ ہم سوچنے لگے، غور کرنے لگے کہ نفس کیا ہوتا ہے۔ جناب نفس ایک اہم شے ہے۔ آپ نے کبھی وہ باجا دیکھا ہے جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا، جس پر توے لگتے تھے، ڈسک چلتی تھی، پرانے گھروں میں ہوتا ہے۔ اس میں ہم چابی بھرتے تھے تو اس کے اندر ایک 4 گٹو والا گورنر چلتا تھا، وہ سپیڈ کو باندھ کر رکھتا تھا، نہ وہ کم ہونے دیتا تھا نہ بڑھنے دیتا تھا، ایسے ہی جیسے ایک پنکھے کا ریگولیٹر ہوتا ہے، اس طرح نفس بھی انسانی وجود کے اندر ایک ریگولیٹر ہے، اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ وجود کا اتار چڑھاؤ، گرمی سردی مزاج مقرر کرتا ہے۔ جیسے آپ کے اے سی یونٹ میں ہوتا ہے، کبھی اس کو فین پر کر دیتے ہیں، کبھی اس کو یونٹ پر کر دیتے ہیں، جیسے آپ کی کار کا سٹیئرنگ ہوتا ہے، جیسے آپ کے ہوائی جہاز کا ٹیلیسکوپ ہوتا ہے کہ اونچا نیچا ہونے پر وہ بتاتا رہتا ہے کہ کتنا اونچا گیا ہے، اسی طرح انسانی وجود کے اندر اس کا نفس ایک ٹیلیسکوپ، ایک سٹیئرنگ ہے، وہ اس کو بتاتا رہتا ہے کہ تو میری مرضی کے مطابق کام کر، اپنی مرضی کے مطابق، یا جو تجھے احکام ملے یہ مت کر۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ بدبخت کدھر سے آ گیا؟ ہم نے نہ اسے بازار سے خریدا، نہ اسے رشتہ داروں سے لیا، نہ اسے کہیں سے منگوایا ہے۔ تو 2 سال کی عمر تک بچے کے اندر تو نفس موجود نہیں ہوتا، وہ بڑی خوشی کے ساتھ دوسرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے کھلونے شیئر کرتا رہتا ہے اور ان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، چھینا چھپٹی، بھاگا دوڑی، لیکن اس کے اندر کسی قسم کی منافقت یا رنجش پیدا نہیں ہوتی۔ پھر سے دوست بن جاتے ہیں، پھر کھیلنے لگتے ہیں، وہاں پر اس کا نفس موجود نہیں۔ لیکن اگر 2 سال کی عمر گزرنے کے بعد ماہرین کہتے ہیں نفس کا بوجھ کا بیج بویا جانے لگتا ہے، اور یوں سمجھیں آپ کی آسانی کے لیے کہ یہ نفس کمزور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ اپنے گھر میں مری جاتے ہوئے، سوات جاتے ہوئے یا صحت افزا مقام پر جاتے ہوئے اپنے ملازم کو چھوڑ گئے ہوں، وہ گھر کی نگہداشت کریں، تو جب آپ لوٹ کر آئیں تو وہ ملازم گھر کا مالک بن جائے اور آپ سے پوچھے جناب آپ کیا چاہتے ہیں، کس سے ملنا ہے؟ وہ کہے میری مرضی کے بغیر، میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، میں آپ کو کنٹرول کروں گا۔ اس نفس کی جو سب سے زیادہ مرغوب غذا ہے وہ قول ہے، گفتگو ہے۔ گفتگو سے یہ بہت موٹا ہوتا ہے اور یہ اپنی گفتگو کو عام کرنے میں لوگوں کو
मरऊब करता है। उसकी मरगूब ग़िज़ा तो कॉल है, लेकिन लोगों को अपने इख्तियार में रखना और उनको मरऊब करना ये उसका फेल है। तो ये जरा पेचीदा सी बात शुरू हो गई, क्योंकि बाबा जी का ख्याल आ गया था, कॉल के साथ जब आदमी वाबस्ता होता है तो अपने आप को भी धोखा देता है, लोगों को भी धोखा देता है। जैसे सियासतदान, वो बड़ी नेक नियति के साथ कॉल की बात करते हैं, लेकिन जब मैं हुकूमत में आ गया तो मैं आपकी तनख्वाह 10,000 रुपया फी महीना कर दूंगा। यहाँ आ गया तो घर बनवा दूंगा। आपके घरों में दीवारों पर कारपेट और पर्दे लगवा दूंगा। और हम लोगों समेत सभी ये समझते हैं कि ये कितनी अच्छी बात कर रहा है। वो शायद खुद नहीं कर रहा होता, उसका नफ्स उसके अंदर चाबी भर के कह रहा होता है कि कह दे, क्योंकि मैंने ये आजमा के और पछता के देखा है कि गुफ्तगू कर देना काफी होता है। उससे आदमी कभी भी तहकीक की तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ कहता अच्छा लगता है। मुझे ऐसे ही ख्याल आ गया, जब हम मिडिल में थे तो हमारे एक उस्ताद थे। वो हमें ज्योग्राफिया पढ़ाते थे, लेकिन वो बहुत मोटे थे। उनका जिस्म पिलपिला था, काफी कद था। बच्चा उनका कोई नहीं था, सिर्फ बीवी थी। डॉक्टर ने उनको वर्जिश करने को कहा तो उन्होंने वर्जिश करने की एक किताब खरीदी, जिसमें वर्जिश करने के बारे में हिदायत थी। तो वो चारपाई पर लेटकर अपनी बीवी से कहा करते थे कि मेरी प्यारी बीवी, मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ, और वो सुनाती थी। हम उनके पास जाते थे तो हम उनसे पूछते, मास्टर साहब आप ये क्यों सुनते हैं? कहने लगे, डॉक्टर साहब ने मुझे एक्सरसाइज करने का हुक्म दिया है। मेरी बीवी पढ़ती जाती है और मैं गौर से सुनता जाता हूँ। अब वो समझते थे कि उसके कॉल से और उसके कहने से एक्सरसाइज होती रहेगी और मेरा वजन कम होता रहेगा और मैं स्मार्ट होता रहूंगा। लेकिन वो बेचारे इसी मोटापे में फौत हो गए और उनकी कोई एक्सरसाइज ना हो सकी। अमल और कॉल में ये जो तजाद है ना, ये साथ साथ चलता रहता है। और आम जिंदगी का अगर आप मुताला करें तो लोगों को मुनाफिक कहने से पहले या उनको डबल स्टैंडर्ड का कहने से पहले ये जरूर सोच लें कि हमारे अंदर बैठे हुए उस तोते का ये फेल है जो हमारी रहनुमाई करता है। कौल और अमल को साथ मिलाकर चलने से आदमी अलबत्ता आदमी की फलाह के रास्ते निकलते हैं। एक दफा बहुत बादल सच आ गया, लेकिन इसमें बादल का कोई कसूर नहीं था। मैं और मेरा बड़ा भाई, जो कि क्लास में भी मुझसे 1 साल बड़े थे, हम कितनी देर से चले और घर से स्कूल का फासला जरा ज्यादा था। जिस गांव में हम रहते थे फासले पर था और असातिज़ा हमारे सख्त थे, तो अंदेशा इस बात का था कि हम देर से स्कूल पहुंचेंगे। मेरी आदत थी कि जल्द परेशान हो जाता था। मैंने अपने भाई से कहा, भाई साहब स्कूल तक हम नहीं पहुंच सकते, बेहतर यही है कि यहाँ बैठकर अल्लाह से दुआ करें कि ए खुदा हमारी मदद फरमा, और यहाँ बैठकर चारों कुल पढ़ें, उसका अच्छा असर होगा। तो मेरे भाई ने कहा, उठो, तेज तेज भागते हैं और साथ साथ कुल भी पढ़ते जाते हैं। खाली बैठकर पढ़ने से तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, उसके साथ ये चीज मिक्स कर दो। तो ये बात नफ्स पर गिरा गुजरती कि ये इतनी सारी चीजें लेकर साथ कैसे चला जाए, बल्कि ये तो जिंदगी में चीजें आती जाती रहती हैं। अब चूंकि मुझे अपने गांव की बैकग्राउंड याद आ गई है, वहाँ हमारी बहुत बड़ी मंडी थी। वहाँ हफ्ते का दाना आता था, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड थी। वहाँ हमारा एक आड़ती था। वो बहुत दर्दमंद किस्म का आदमी था। वो अपने गोदामों को मोटे मोटे ताले लगाकर, लंबी लंबी चाबियां लगाकर कहता रहता था कि बेचारे गरीबों का बहुत बुरा हाल है। अब भी आपने अक्सर सुना होगा, जिस आदमी के पास भी फारग वक्त होता है कहते हैं, महंगाई बहुत है, बेचारे गरीब क्या करेंगे अब। इसका मतलब होता है कि मैं तो काफी अमीर हूं, मैं तो गुजारा कर लूंगा, बेचारे गरीब क्या करेंगे। आप भी रोज गुफ्तगू में कहते हैं, ऐसे ही वो कहा करता था, बेचारे गरीबों का बुरा हाल है, उनको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, क्या करें। वो कॉल की बात करता था, कॉल के साथ वाबस्ता था, उसकी जिंदगी ऐसी ही थी। उसका बेटा हमारा हमदर्द था, 7वीं 8वीं में पढ़ता था। उसको ये बात बहुत नागवार गुजरती थी, क्योंकि जब भी कोई फकीर या गदागर आता और कहता कि अल्लाह के नाम पर मुझे एक सेर गंदुम दे या मकई दे, इस वक्त सेर ही वजन में इस्तेमाल होता था। तो वो कहता था, भाई ये अल्लाह ने क्या कैफियत बना रखी है, मैं बड़ा दुखी हूँ, तुझको तेरे बच्चों को अल्लाह सलामती अता करे और तुम्हारे घर पर बारिश और नेमत की फरावानी की। फकीर बेचारा चला जाता था उसकी बात सुनकर। उसका बेटा उससे
उससे हमदर्द तो था। तो उसने एक रोज अपने बाप से कहा, बाबू, तू ऐसे कर कि तू ये जो लोगों की बेहतरी का काम करता है ना, ये मैं कर दूंगा। उसने कहा, तू कैसे कर देगा? कहने लगा, ये गोदाम की चाबी मुझे दे दे, तू दुआ मांगता रह, मेरे पास चाबी होगी। आरती ने गुस्से से कहा, खबरदार, तूने ऐसी बात की। दुआ मांगने का एक तरीका होता है। अच्छा, अल्लाह भला करे, लेकिन चाबी जो है वो मजबूती के साथ लगी रहनी चाहिए। तो मैं कह रहा था, नफ्स को ट्रेंड करने के लिए और इस नफ्स को सही राह पर रखने के लिए बुजुर्गों ने, लोगों ने, साइंसदानों ने, साइकोथेरेपिस्ट ने बड़े तरीके इजाद किए हैं, लेकिन ये काबू में नहीं आया। और हर वक्त आदमी को विजिलेंट होके, अटेंटिव होके, होशियार होके, चौकस होके इसकी तरफ निगाह रखने की जरूरत है, वरना आदमी का अंजाम जो है अच्छा नहीं होने देता। शैतान इतना नुकसान नहीं करता जितना नफ्स करता है। उसका बुनियादी ताल्लुक गुफ्तगू के साथ है और बात के साथ है, और ये बात से निकलने नहीं देता। इसलिए आपने देखा होगा, इस वक्त भी, इससे पहले भी, जब अखबार नहीं छपते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, मेरे जैसा प्रोग्राम नहीं होता था, तो इतनी गुफ्तगू नहीं होती थी। अब अखबार भी छपते हैं, एडिटोरियल भी लिखे जाते हैं, कॉलम भी रोज आपके सामने पेश किए जाते हैं, लेकिन वो सब कुछ जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। ये इंसानी जिंदगी जो एक बड़ा तनावर वजूद है, उसकी एक एंटिटी है, जिसका एक बोझ है, उसका सहारा नहीं है। एक बादशाह थे, वो शायद चीन के थे या किसी इस्लामी दुनिया के थे। उनके एक पीर थे और उनके बहुत बहुत पैरोकार और मुरीद थे। उनकी तादाद हजारों में थी, तो लोग हैरान होते थे। और वो जिस राह से, जिस गांव करिया से गुजरते थे, तो मुरीदों की तादाद में इजाफा होता चला जाता था। तो जब वो दरबार बादशाह या खलीफा के मुकाम पर पहुंचे, तो उन्होंने बड़ी आवभगत की और उनका बड़ा जश्न मनाया। तो तकरीबन 50,000 उनके पैरोकार जो थे वो खुले मैदान में जमा हो गए, और वो सब अपने मुर्शिद के दर्शन करने के लिए दिन रात वहां बैठे रहे। बादशाह ने बहुत खुश होकर इस मुर्शिद से कहा, आप बहुत खुश नसीब आदमी हैं कि आपके मोतदीन की तादाद इतनी ज्यादा है कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता। और देखिए क्या जम्मे गफीर बैठा है, लोगों के सर ही सर दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ये जो सारे के सारे बंदे जो मेरे मुरीद हैं, और ये जो मेरे मोत्तकीन हैं, ये सारे के सारे कौल के आदमी हैं। उनका मेरी ज़ात के साथ या मेरे वजूद के साथ या मेरी रूहानी दरसो तदरीस के साथ कोई गहरा ताल्लुक नहीं है। ये मुझे मानने वाले नहीं हैं, बस चले आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे। आप सड़क पर निकल के खड़े हो जाएं और एक तरफ आंखें उठाकर देखने लगें, आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक रुकने लगेगी, और कोई ना कोई आदमी आपके साथ साथ मुंह उठा के इधर देखने लगेगा, पूछेगा नहीं कि आप क्या देख रहे हैं। फिर एक और आ जाएगा, इसी तरह बेशुमार लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये वैसे ही लोग हैं, इस तरह के। उन्होंने कहा, मैं ये बात नहीं मानता, ये तो बड़े गहरे अकीदतमंद नजर आते हैं। उनकी दिलजान निगाहें आप पर लगी हुई हैं, आप ही कैसे कहते हैं ये खाली कॉल के साथ बंधे हुए हैं? उन्होंने कहा, अगर आप टेस्ट करना चाहें तो ये लेबोरेटरी टेस्ट है। इससे अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, ये जो 50,000 आपको नजर आते हैं, मेरे मुरीदीन, मेरे मौत मौत के दिन, मेरी पैरवी करने वाले, इनमें से सिर्फ 1.5 शख्स ऐसा है जो मेरी अकीदत वाला है और मुझ पर जानिसारी कर सकता है और मुझको मानता है, और बाकी के ऐसे ही हैं। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे कह रहा है, ये 1.5 कैसे कह रहा है। और उसने कहा, टेस्ट कैसे करें? उसने कहा, टेस्ट ऐसे करें कि उनके नफ्स का टेस्ट करें। पुराने लोग अपने तर्ज पर टेस्ट करते थे। उन्होंने कहा, इसी मैदान के ऊपर एक टीला है, और इस टीले के ऊपर मुझे एक झोंपड़ी बनवा दें, फौरन रात की रात में बनवा दें। जैसे बुजुर्ग लोग झोंपड़ी में रहते हैं, मैं उसमें रहूंगा। तो बादशाह ने झोंपड़ी बनवा दी। इस झोंपड़ी में उस बुजुर्ग ने 2 बकरे बांध दिए, और किसी को पता नहीं कि इसमें 2 बकरे बांधे गए हैं। और फिर वो झोंपड़ी से बाहर निकला और कुछ दम दरूद और वजीफा किया, और ऊंची आवाज में कहा, है कोई मेरे सारे मुरीदीन में से जो मुझ पर जान छिड़कता हो, मेरी बात दिल की गहराइयों से मानता हो, और मेरे साथ हर बुरी अच्छी में साथ देने वाला हो?
अगर कोई ऐसा है तो मेरे पास आए और मेरे साथ रहे, जो कुर्बानी उससे मांगू वो दे। बस सन्नाटा छा गया। सब लोग जहां बैठे थे दम बखुद बैठे रहे, दम बखुद बैठे रहे कि अल्लाह जाने कि हमसे क्या चाहता है। अब इस 50,000 के जमे गफीर में से सिर्फ एक आदमी उठा और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ ढीले पांव रखते उसके पास गया। उसने कहा, तुझ में ये दम कम है? उसने कहा, हाँ है। कहा, आ मेरे साथ। उसने उसकी कलाई पकड़ी, उसको झुग्गी के अंदर ले गया और वहां खड़ा कर दिया और कहा, खामोशी के साथ खड़ा रह। फिर उसने एक बकरे को लिटाया, छुरी निकाली और उसे ज़िबा कर दिया झोंपड़ी की नाली के पास। और जब वो खून निकला तो 50,000 के गिरोह ने देखा, और वो खून आलू छुरी लेकर बाहर निकला और कहा, कुर्बानी वाले देने वाले शख्स ने कुर्बानी दे दी। मैं उससे पूरी तरह से मुतमईन हूँ। उसने बहुत अच्छा फेल किया। जब लोगों ने ये देखा तो हैरान और परेशान हो गए। अब उनमें से लोग आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगे, कुछ जूतियां पहनकर, कुछ जूतियां छोड़कर। पीछे बैठने वाले सोचते हुए कि अल्लाह जाने ये मेरे साथ क्या करेगा, कम होना शुरू हो गए। जब कम होने लगे तो उन्होंने कहा, ए लोगों, कौल के आदमी ना बनना, सिर्फ मजबूती और इस्तकामत के साथ खड़े रहने की कोशिश करना। ये तो जो हुआ कुर्बानी देने वाला, उसको तो माना आपने भी। अब मैं फिर एक और साहब से कहता हूँ, वो भी अपने आप को कुर्बानी देने के लिए पेश करे और मेरे पास आए, क्योंकि ये उसके नफ्स का टेस्ट है। तो सन्नाटा छाया हुआ था, कोई आगे ना बढ़ा। इस दौरान एक औरत खड़ी हुई। उसने कहा, ए आका, मैं तैयार हूँ। उसने कहा, बीबी आ। उसने कहा, बसर चश्म। चुनाचे वो बीबी चलती चलती झुग्गी में गई। उस बेचारी के साथ भी वही हुआ जो पहले के साथ हुआ। अंदर से खड़ा किया, दूसरा बकरा ज़िबा कर दिया और इसके परनाले से खून के फव्वारे छूटे। जब यह वाकया हो चुका तो बादशाह ने कहा कि आप सही कहते थे, क्योंकि वो मैदान सारा खाली हो गया था। 50,000 आदमी उनमें से एक भी नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने कहा था मेरे मानने वालों में से सिर्फ 1.5 शख्स है जो मानता है। बादशाह ने कहा, हाँ, मैं मान भी गया और समझ भी गया। और वो शख्स था, वो मर्द था, वो पूरा था। जबकि वो औरत, जो औरत थी, वो आधी थी। उसने कहा, नहीं बादशाह सलामत, ये मर्द आधा था और औरत पूरी थी। पहला जो आया था उसने कोई खून नहीं देखा था, इस बीबी ने देखा था। जो वाकया गुजरा, फिर भी उठकर आने के लिए तैयार हुई थी। इसलिए वो सालम एंटिटी पर है खातून, और आधा वो मर्द है। मेरे मानने वालों में 1.5 लोग हैं, बाकी सारे नफ्स के बंदे हैं। तो इस नफ्स के साथ इंसान की अपनी तर्ज की लड़ाई रहती है, कहीं कामयाब होता है, कहीं गिर जाता है। ये वो गेंद है, जब जमीन पर मारो तो उछलता है, फिर जमीन की तरफ आता है। अल्लाह हम आपको ये तकवीत अता करे, हम अपने नफ्स का मुआयना करके उसको काबू में लाने के लिए उन लोगों की तालीम पर अमल पैरा हो सकें, जिन्होंने हमें बने बनाए नुस्खे दिए हैं कि उस पर अमल करें। और जैसे नबियों ने, जो इंसानों की सूरत में नबी हमको मिलते रहे हैं, उन्होंने हमें बना बनाया प्रोग्राम दिया। इस पर अमल करते रहिए। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।